رضوی روڈ اور اطراف میں قائم غیر قانونی عمارتیں فوری گرائی جائیں، سرکاری کوارٹرز کی جگہ وفاق کے ملازمین کو دی جائے۔ سپریم کورٹ کا حکم، چیف جسٹس نے ڈائریکٹر لینڈ کنٹونمنٹ کی بھی سرزنش کر دی، کہا آپ لوگوں نے خزانے بھر لیے اور اب کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ یہ بھی کہا ڈی ایچ اے کی کہانی بھی معلوم ہے، جائزہ لیں تو سارا ڈی ایچ اے ہی غیر قانونی نکلے گا، ساری لیزیں فارغ ہو جائیں گی، میں بھی فارغ ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں، ہمیں چلنا قانون پر ہے۔ ہر جگہ پر قبضہ ہے، پورشنز کی بھرمار ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کیس میں چیف جسٹس برہم، وکیل کنٹونمنٹ بورڈ کی بھی کلاس لی، کہا آپ انگریزی بول کر ہمیں خوش نہیں کر سکتے۔ مین روڈ پر 5-5 کروڑ روپے کے فلیٹس بکے ہیں۔ کے ایم سی، کے ڈی اے، ڈی ایچ اے سب کی مہربانی سے کراچی میں 55% کچی آبادی ہے۔ لائنز ایریا کا حشر برا کر دیا، خداداد کالونی پر قبضہ ہو گیا۔ عدالت نے جہانگیر روڈ سے بھی حکومت کی زمین خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کراچی ایک میگا پرابلم سٹی بن چکا ہے، وفاق ہو یا صوبہ یا پھر شہری حکومت، کوئی کام نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ نے کراچی کا دوبارہ ڈیزائن بنانے کا حکم دے دیا، سول انجینئرز اور ٹاؤن پلانر سے بھی مدد حاصل کرنے کی ہدایت۔ یہ بھی کہا اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی جائے۔ عدالت کا یونیورسٹی روڈ پر قائم پی آئی اے پلیٹینیم سے متصل شادی ہال گرانے کا بھی حکم، کل تک اسٹرکچر ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پی آئی اے کی دیگر زمینوں سے متعلق بھی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، ملک کی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی کے امور میں آئی ایس آئی کے کردار کو سراہا۔ Demands that to stop these shameful and brutal killings of children and give us strong, but they should be hanged publicly. جی وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کریں، ہاں والوں کی اکثریت ہے لہذا قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ بچوں سے زیادتی اور پھر ان کا قتل کرنے والے نشان عبرت بنیں گے، قومی اسمبلی میں سرعام پھانسی دینے کی قرارداد منظور، پیپلز پارٹی کی مخالفت۔ راجہ پرویز اشرف بولے سرعام پھانسی نہیں دی جا سکتی، سزائیں بڑھانے سے جرائم کم نہیں ہوتے۔ سرعام پھانسی دینے کی قرارداد، حکومت کے اندر اختلافات۔ فواد چودھری بولے ایسی سزائیں قبائلی معاشروں میں دی جاتی ہیں۔ شیری مزاری نے کہا فرد واحد کی پیش کردہ قرارداد کی وزارت انسانی حقوق مخالفت کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کی تجویز منظور کر لی، سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھی ارسال۔ 3.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد روک لی جائے گی، حکومت طلب اور رسد کا فرق پورا کرنے کے لیے چینی کی درآمد بھی کرے گی۔ جہانگیر ترین کا کیا رول تھا، خسرو بختیار کا کیا رول تھا؟ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، گودام حکومت کس کی؟ عمران خان کی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا مافیا، چیک کرے خسرو بختیار کے گودام، چیک کرے جہانگیر ترین کے گودام، اب پتہ چل جائے گا کس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ 14% ہے مہنگائی کی شرح، 14.5%۔ ہمارے زمانے میں کیا تھی؟ 4%۔ چینی مہنگی ہو گئی، پیسے کس کی جیب میں گئے؟ نون لیگ نے سوال اٹھا دیا۔ اسلام آباد میں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، معیشت کی خراب حالت کا ذمہ دار وزیر اعظم کو قرار دیا۔ محمد زبیر بولے معاشی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے۔ مصدق ملک نے اپنی حکومت کے کارنامے گنوائے، کہا 1 سال میں نالائق لوگوں نے ملک کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ سبحانی اپنی راجکماری کے لیے اپنی شہنشاہیت میں جو کچھ کرتے رہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون ضلع سبحانی کی خواہشات پہ چلے۔ قوم جاننا چاہتی ہے، وہ پلیٹیں اور چمچے ان کی کھنک ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ عوام کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے، سچائی سے بھاگنے والوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، فردوس عاشق آغان کا رد عمل۔ کہا ضلع سبحانی چاہتے ہیں قانون ان کی مرضی سے چلے، نواز شریف کے پلیٹلیٹس نظر نہیں آ رہے، چمچوں اور پلیٹوں کی کھنک سنائی دے رہی ہے۔ میڈیکل رپورٹ نے قطری خط کا درجہ اختیار کر لیا ہے،
फैयाजुल हसन चौहान बोले, नवाज शरीफ की ये हालत डॉक्टर अदनान के टीकों और ट्वीट की वजह से है। क्या जेल में कैद तमाम मुजरिमों को बेटियों से मुलाकात के लिए छोड़ दिया जाए? बेगम सफदर अवान साहिबा कोई बकरी बेटी नहीं है। इस वक्त जो हजारों लाखों लोग पाकिस्तान के जेलों में हैं, सारों की बेटियां हैं। डॉक्टर अदनान, उनके ट्वीट और उनके टीके, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस हालत तक पहुंचाया। नवाज शरीफ साहब के दिल का ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, दिमाग का ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के जुडिशल रिमांड में 28 फरवरी तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल की नैब को प्ली बार्गेन की पेशकश। कहा, प्ली बार्गेन कर ली वरना हर जाने का मुकदमा दायर करूंगा। अपने खिलाफ मुकदमे को मजाक और आइन के खिलाफ करार दे दिया। इसका खौफ, पाकिस्तान में मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा। प्रिम्स अस्पताल में मजीद 6 मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। 3 पाकिस्तानी और 3 चीनी बाशिंदे शामिल। सूरत हाल पर कौमी दायरा बराए सेहत का खुसूसी इजलास, इक़दामात का जायजा लिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस का कोई केस मौजूद नहीं, हुक्काम की ब्रीफिंग। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद हलाक, अमवात 639 हो गईं। 31,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर। 2 नौज़ायदा बच्चों में भी वायरस की तस्दीक। कोरोना से खबरदार करने वाला डॉक्टर भी मुहलिक वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गया। शंघाई की गलियों और घरों में वायरस से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज। मास्क भी कम पड़ने लगे। चीन ने मुख्तलिफ ममालिक से मास्क मुहैया करने की अपील कर दी। काशाना वेलफेयर लाहौर की रिहायशी इकरा कायनात की शादी के बाद गुमशुदगी और पुरस्रार मौत की रिपोर्ट थाने में दर्ज। इकरा का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। मौत कैसे हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। शौकीन बाज न आए, कानून की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद फैसलाबाद में बसंत मनाई गई। पुलिस का एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद गिरफ्तार, पतंगे और डोरें कब्जे में ले ली। पता नहीं है मगर बनना चाहिए। मैं बोला कि समोसे मांग रही हूँ, तुम बेच दिया करो। फिर मैं बोला सही। उम्र छोटी लेकिन हौसला बुलंद, कराची का नन्ना जाहिद माशरे के लिए मिसाल। माशी मुश्किलात के बावजूद हिम्मत ना हारी। माँ समोसे बनाती है, बेटा बेच कर आता है, घर का गुजर बसर चलाता है। 10 साल जाहिद स्कूल भी जाता है। बड़ा होकर इंजीनियर बनने की ख्वाहिश, टीचर्स भी जाहिद के मुहतरफ हैं। किराए का दुकान है, मतलब पूरी भी नहीं होते बाज़ दफ़ा यकीन करें ईद के दिन पे पैसा ना मुझसे लेके जाती, पूरी आलू छीलती हूँ, उससे मतलब 150 रुपये लेती हूँ, ठीक है, रोज़मर्रा। बच्चा जो भी बताते हैं ना अपनी दिल की बात सच सच बता देता है, कभी झूठ नहीं बोलता ये आका। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी कराची के हवाले से केसेस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने गजरी रोड और अतराफ में कायम गैर कानूनी इमारतें फौरी तौर पर गिराने का हुक्म दिया है। अदालत ने डायरेक्टर लैंड कंटोनमेंट की सरजनिश करते हुए कहा, आप लोगों ने खजाने भर लिए और अब कहते हैं कि गैर कानूनी तामीरात है। DHA की कहानी भी हमें मालूम है, जायजा ले तो सारा DHA ही गैर कानूनी निकलेगा। सारी लीजें फारिग हो जाएंगी, मैं भी फारिग हो जाऊंगा। इमारतें फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। अदालत ने डायरेक्टर लैंड कंटोनमेंट की सरजनिश करते हुए कहा, आप लोगों ने खजाने भर लिए और अब कहते हैं गैर कानूनी तामीरात हैं। उस वक्त आंखें बंद थी जब पैसे बटोर रहे थे। आप लोगों पर एतबार करके सरकारी जमीनें हवाले की गई थी। आप लोगों ने इस ट्रस्ट के साथ क्या किया? चीफ जस्टिस बोले, DHA की कहानी भी हमें मालूम है, जायजा लें तो सारा DHA ही गैर कानूनी निकलेगा। सारी लीजें फारिग हो जाएंगी, मैं भी फारिग हो जाऊंगा। पर फारिग हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें चलना कानून पर है। कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि हम तजावुजात के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप अंग्रेजी बोलकर हमें खुश नहीं कर सकते। आपको बाहर से बुलाया गया ताकि आपको पता ही ना हो जमीनी हकाइक क्या हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बताएं ये इलाका विफाक के जेर इंतजाम है। PNT कॉलोनी और नीलम कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात कौन कर रहा है? हर जगह कब्जा है, खुले मैदान तक खत्म कर दिए गए। विफाक गैर कानूनी तामीरात गिराए,
मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स गिराकर कॉलोनी को असल शक्ल में बहाल किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए कहा, पोर्शंस और क्वार्टर्स पहले के मौजूद हैं, इमारतें लोगों से खाली करा के फिर गिराएंगे। अदालत ने सरकारी क्वार्टर्स में कायम तमाम गैर कानूनी तामीरात फौरी गिराने का हुक्म देते हुए कहा कि क्वार्टर्स की जगह खाली करा के वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को ही दी जाए। तमाम मुकदमात की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का दोबारा डिजाइन बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सिविल इंजीनियर्स और टाउन प्लानर से भी मदद हासिल करने की हिदायत कर दी है। कराची में कच्ची आबादियों की भरमार है। आप लोगों की मेहरबानी से शहर में 55% कच्ची आबादी है। ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची एक मेगा प्रॉब्लम सिटी बन चुका है। विभाग हो या सूबा या फिर शहरी हुकूमत, कराची में कोई भी काम नहीं कर रहा। मज़ार कायद के सामने फ्लाईओवर बना दिया, मज़ार छुप कर रह गया, इमारतें बना डाली। शहराए कायदीन का नाम कुछ और ही रख दें, वो कायद नहीं हो सकती। एडवोकेट जनरल बोले, अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हैं, आप ही इसे दुरुस्त कर सकते हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जब तक मुतालिका इदारे ठीक नहीं होंगे, मामला ठीक नहीं होगा। एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि एक शख्स पैसा जमा करके फ्लैट खरीदे तो उसे कैसे तोड़ दें। रेलवे ने पहले ही 6000 गरीब लोगों को बेघर कर दिया। विफाक ने सिंध को 100 अरब देने हैं, हमारे पास वसाइल नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर 100 अरब रुपए भी मिल जाएं तो क्या होगा, एक पाई लोगों पर नहीं लगेगी। 105 अरब रुपए पहले भी मिले लेकिन एक पाई नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का दोबारा डिजाइन बनाने का हुक्म देते हुए इस सिलसिले में सिविल इंजीनियर्स, माहिरीन और टाउन प्लानर से मदद हासिल करने की हिदायत की और साथ ही ये भी कहा कि इस हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी रोड पर कायम PIA प्लेटिनियम से मुतालिक शादी हॉल गिराने का हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान डायरेक्टर PIA ने अदालत को बताया कि शादी हॉल खत्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने कल ही देखा है, शादी हॉल मौजूद है। जिस पर डायरेक्टर ने जवाब दिया कि सरगर्मियां खत्म हो चुकी हैं, वहां कोई कमर्शियल काम नहीं हो रहा। अदालत ने कल तक स्ट्रक्चर खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए PIA की दीगर जमीनों से मुताल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की सलामती के उमूर में ISI के किरदार को सराहा। अब आपको बताएं कि बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद कौमी असेंबली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बच्चों से ज्यादती करने वालों के लिए सजाए मौत चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक सरेआम फांसी नहीं दी जा सकती। बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद कौमी असेंबली में कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने करारदाद पेश की। This house strongly condemns the brutal killing of 80-year-old Awaz Noor in Nowshera and demands that to stop these shameful and brutal killings of children and give a strong deterrent effect. The killers and rapists should not only be given death penalty but hanging, but they should be hanged publicly. पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मुखालफत की। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक सरेआम फांसी देना मुमकिन नहीं। कौमी असेंबली से बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी की करारदाद क्या मंजूर हुई। तहरीक इंसाफ के वज़रा फट पड़े। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान की करारदाद को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करार